Hello students, welcome to maths class. In the last class, we have learned how to solve the equations reducible to pair of linear equations and how to solve it. And secondly, we also learned how to solve both problem that is related to upstream and downstream. I hope the concept of upstream and downstream have been clear to you. Today we will continue with the same topic, that is word problem based on speed, distance and time of another type, and we will take another topic that is based on time and work and time. Okay? In the last class मैंने आप लोगों को कुछ homework दिए थे. Let us check our answers. Last class में हमने ये questions आप लोगों को as a home assignment दिए थे. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज 3 by x plus y plus 2 by x minus y equals to 2, and the second one 9 by x plus y minus 4 by x minus y equals to 1. This can be written as 3a. ये आपको मिला होगा when आपने 1 by x plus y equals to a लिया होगा. Okay, where you have taken 1 by x plus y as a and 1 by x minus y as b. So आपको मिला होगा 3a plus 2b equals to 2 and 9a minus 4b equals to 1. When you solve these two equations, you will get a equals to 1 by 3 and b equals to 1 by 2. Similarly, when you substitute the value of a in this equation 1 by x plus y, you will get this one, that is 5 by 2, x equals to 5 by 2 and y equals to 1 by 2. Next, question number 2. 10 by x plus y plus 2 by x minus y equals to 4, and second equation is 15 by x plus y minus 5 by x minus y equals to minus 2. इसे जब आप चेंज करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 by x plus y को ले लोगे a and 1 by x minus y को ले लोगे आप b, तो आपको मिलेगा 10a plus 2b equals to 4 and 15a minus 5b equals to minus 2. जब आप सॉल्व करोगे तो आपको a मिलेगा a equals to 1 by 5 and b equals to 1. Okay, now when you substitute the values, you will get x equals to 3 and y equals to 2. Clear? Third one is 1 by 2 into x plus 2y plus 5 by 3 into 3x minus 2y equals to minus 3 by 2, and another equation is 5 by 4 into x plus 2y minus 3 by 5 into 3x minus 2y equals to 61 by 66. इसे जब when you will take 1 by x plus 2y as a and this one 1 by 3x minus 2y as b. Clear? तो यहाँ पे देखिए 1 by x plus 2y, 1 by x plus 2y, इसे आप लोगे a, और यहाँ पे सेकंड वाला सेकंड टर्म देखें तो 3x minus 2y, तो 1 by 3x minus 2y equals to b. जब इसे लोगे तो आपको मिलेगा ये दो इक्वेशंस. ओके, दैट इज 1 by 2, 1 by 2 a plus 5 by 3 b equals to 3 by minus 3 by 2, and 5 by 4 a minus 3 by 5 b equals to 61 by 66. Okay, when you solve these two equations, you will get a equals to 1 by 3, b equals to minus 1, and when you substitute this value in this equation, okay, you will get x equals to 1 by 2 and y equals to 5 by 4. ठीक है, आप इसका एक स्नैप ले सकते हो. होमवर्क असाइनमेंट दिया था मैंने डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के ऊपर में. ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज a boat goes 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम. यू कैन सी द क्वेश्चन on your screen. The question is, a boat goes 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. In 6 hours, it can go 12 km upstream and 36 km downstream. Determine the speed of stream and that of boat in still water. Okay, तो ये क्वेश्चन था. तो इसमें इसका इक्वेशंस आप लोगों को मिला होगा 24 by x plus y plus 16 by x minus y equals to 6, equation number 1, and second condition आप लोगों को मिला होगा 36 by x plus y plus 12 by x minus y, that is equals to 6. When you solve, you know very well how to solve these two equations. You have to reduce it into
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो हम लेंगे 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू बी। तो उससे सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिला होगा x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विल बी 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की जो चाल है वो आपको मिली होगी 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ए बोट गोज 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। लुक एट योर स्क्रीन, लुक एट योर क्या गड़बड़ हो रहा है। ओके, लुक एट दिस, वहीं जाके गड़बड़ हो जाता है। स्क्रीन पर देखिए, द क्वेश्चन इज ए बोट गोज 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 hours. In 15 hours, it can go 40 kilometer upstream and 77 kilometer downstream. Find the speed of the stream and that of boat in still water. Okay, questions आपने रीड कर लिया है। तो क्वेश्चन ये था, आपको इसका आंसर ऑब्टेन इक्वेशंस मिला होगा आपको 33 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 25 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड सेकेंड कंडीशन से आपको मिला होगा 77 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 40 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 15। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 3। व्हाट इज x? x इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड speed of stream will be, in this case it will be 3 kilometer per hour. Okay, आपके सारे homeworks doubts clear हो चुके होंगे। Let's continue our class. Okay, today our topic is the statement problem that is based on speed, distance and time. Okay, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 third part, and the question is Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separately. रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूर रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ की दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा रूही है, एक लड़की है, उसे 300 किलोमीटर दूरी तय करनी है। शी हैज़ टू ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम और उसका होम जो है 300 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन जाने के लिए वो 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है। थोड़ी वो ट्रेन में जाती है और थोड़ा सफ़र वो जो है बस में करती है। ओके, तो हो सकता है यहाँ तक वो ट्रेन में गए और यहाँ तक बस से। क्लियर? ओके, तो इसमें वो जा रही है ट्रेन से और बस से। दैट मीन्स वी डोंट नो द स्पीड ऑफ ट्रेन एज वेल एज स्पीड ऑफ बस। तो जो चीज़ हमें नहीं पता वो हम ले लेंगे x. सो लेट द स्पीड ऑफ train will be x kilometer per hour means हम मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल हो गई x किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल हो गई x किलोमीटर पर आवर और हम मान लेते हैं द स्पीड ऑफ बस एज y. Okay, and the speed of bus equals to y kilometer per hour. बस की चाल हम मान लेंगे, बस की चाल मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। ओके, उसे टोटल डिस्टेंस कितना पूरा करना है? टोटल डिस्टेंस, so total distance is she has to cover 300 kilometer.
क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर होगा, हो गया होगा। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं। इफ, स्क्रीन पे नजर डालिए, इफ she takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. Okay, case 1, when she travels 60 km by train and remaining by bus, she takes 4 hours. Okay, case 1, when Ruhi, this is city 1, case 1, when Ruhi, she takes 4 hours when she travels 60 km by train and remaining by bus. इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स रूही जो है 60 किलोमीटर ट्रेन से जर्नी करती है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बस से ट्रेवल करती है और उसे कितने टाइम लगता है? उसे टोटल टाइम लगता है 4 आवर्स। इट इज बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला थीम आपके दिमाग में होगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करके चलेंगे, बट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेन एंड बस। हमारे पास ट्रेन है और बस है, ट्रेन बस, ठीक, रेलगाड़ी। हम इसको कंपेयर करके चलेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। फर्स्ट वन इज दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए 4 आवर्स टाइम है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, speed of train, that is S1, okay, is speed of train we have assumed it is x kilometer per hour, and come to this side speed of bus। जब हम एक साथ कंपेयर करके चलेंगे तो हमें इस प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलमोस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्पीड ऑफ बस will be speed to, that is y kilometer per hour। Clear? अब ये है रेल की चाल, बस की चाल। सेकंड वन, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल, that is v1, तय की गई दूरी। किस किस में नहीं है? ये है ट्रेन के बारे में। तो ट्रेन में कितना चला? ये चली ट्रेन में 60 किलोमीटर, she traveled 60 किलोमीटर। एंड व्हाट अबाउट बस? बस कितना चली? टोटल उसका डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक हो गया 60 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये गई है ट्रेन से, ओके, और ये जा रही है बस से। टोटल डिस्टेंस she has to travel is 300 kilometer, 60 kilometer by train, and remaining will be 300 minus 60, that is 240. Okay, so the distance traveled d2 will be 300 minus 60, that is 240 kilometer. What about the time? Now, time taken. Time taken. In case of train T1, time equals to, you already know, speed equals to distance by time, or time equals to distance by speed. Okay. So, in this case, time equals to distance by speed. First case है, we are talking about train. So D1 is 60 and S1 is X. In this case, time taken T2 will be distance traveled by time taken, distance traveled by speed.
distance is 240 kilometer and speed is y kilometer. Okay, now look at this. She takes how much time? 4 hours, means time taken by train plus time taken by bus, दोनों को प्लस करने से आपको कितना मिलना है? 4 आवर्स. मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रेन में आपको 1 आवर लगता है, हो सकता है बस में आपको 3 आवर्स लगा, मीन्स 1 + 3 4 आवर्स आपको टोटल लगा है. ओके, दैट मीन्स T1 plus T2 equals to 4. Okay, T1 is 60 by x plus T2 is 240 by y equals to 4. This is equation number 1. यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा. ओके, बिल्कुल वैसे ही है. आपको दो कॉलम्स बनाने हैं. इसको लिखने का तरीका क्या है? आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ट्रेन के बाद स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया, उसके बाद दिस वन, ये स्टेटमेंट को आप इसके नीचे लिख सकते हैं. तो बस, स्पीड ऑफ बस, ओके, दैट इज 5 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, एंड टाइम टेकन. इसके बाद लास्ट स्टेप होगा आपका T1 plus T2 equals to 4. टाइम टेकन बाय ट्रेन, ओके, एंड टाइम टेकन बाय बस. दोनों को प्लस करने से आपको कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स लगता है. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. Okay, case 2. Read the question again. Okay, the question is, come to the second line. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Means यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं. ओके, आपका स्थिति 2, केस 2 आपका ये है. She takes 10 minutes longer when she travels 100 km by train and remaining by bus. Same, आपको ट्रेन और बस कंपेयर करना है दोनों को. स्पीड ऑफ ट्रेन same, the speed of train we have assumed that it is x km/h and speed of bus is y km/h. And distance travel, in this case she travels 100 km by train and remaining by bus. तो remaining कितना बचा? 300 minus 100. Okay, 300 minus 100 that is 200. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. ये बहुत इजी है. Okay, then we will come to the time. Time taken given by S1, that is distance traveled by speed of train. So distance is here 100 and speed is x. Okay, hours. Time taken in the next case, in the case of bus, time taken T2 will be D2 by S2. So D2 is 200 by S2 is 1. Okay, now read the question carefully. Look at here, how much time she takes? कितना टाइम लगती है? She takes 10 minutes longer. बहुत बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, गलत करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं यहाँ पे कि वे लोग लिखते हैं T1 plus T2 equals to 10. ये रॉन्ग है. कैसे रॉन्ग है? Now she takes 10 minutes longer. 10 मिनट अधिक लेती है. किससे अधिक लेती है? तो फर्स्ट केस से कंपेयर किया है, कंपैरिजन हुआ है. फर्स्ट केस में she took 4 hours. ठीक है, 4 घंटे फर्स्ट केस में लिया है. अभी वो क्या कर रही है? 4 घंटे तो लेती है, एक्स्ट्रा 10 मिनट्स ज्यादा लेती है. ओके, क्लियर है? मीन्स T1 plus T2 must be equals to how much? तो ट्रेन में जितना टाइम लगा उसको प्लस बस में ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा, दोनों को प्लस करने से उसको कितना ज्यादा लग रहा है? 10 मिनट्स लॉन्गर. मीन्स पहले कितना लगता था? पहले लगता था 4 आवर्स, अब लग रहा है 10 मिनट्स लॉन्गर. अधिक लगते हैं इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ. तो 4 आवर्स. क्लियर? अब इस 10 मिनट्स को वी विल कन्वर्ट इनटू आवर्स. ओके, तो T1 plus T2 equals to 4 plus 10 by 60. Okay, I think आप इसका स्नैपशॉट
ले लिया होगा। ओके, T1 हमें जो मिला है T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 4 प्लस 10/60। 10 मिनट्स को भी हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो ये हो गया 10/60 एंड T1 वाज 100/x प्लस एंड T2 200/y इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे 6 4 24, 24 प्लस 1 25/6। दिस इक्वेशन नंबर 2। ओके, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन वाज, आपको फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट केस से मिला था हमें। ओके, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. First equation was 60/x plus 240/y equals to 4. Another one 100/x plus 200/y equals to 25/6. इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 60, 240 and 4, that means it is divisible by 4. Dividing each side by 4, and in this case 100, 200 and 25, that means it is divisible by 25. So we will divide, okay, dividing each side by 25, तो हमें मिलेगा 15/x plus divided by 4 60/y equals to 1, and this one will be 25 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 4/x plus 25 8s are 200 equals to 1/6. Okay, at this stage you know very well how to solve, how to reduce into pair of linear equations. It is 1/x type, so it will be written as 15a plus 16b equals to 1 and 4a plus 8b equals to 1/6. ये आपको सॉल्व करना आता है तो मैं ये आपके लिए छोड़ रही हूँ। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट कैन बी रिटन एज इक्वेशन 3 and 4 can be written as this one will be 15a plus 60b equals to 1 and second one will be 4a plus 8b equals to 1/6. Clear? इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। Now when you solve these two equations, linear equations, you will get a equals to 1/60 and b equals to 1/80. Okay? Okay, here you have assumed that a is nothing but 1/x and b is 1/y. ये मैं आप लोग कैपेबल हो इसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। तो a मिलेगा 1/60 and b मिलेगा 1/80. What is a? A we have assumed a is 1/x or b is 1/y. That is, this implies x equals to 60 and y equals to 80. What is x? We have assumed that the speed of train is x. Okay, the speed of train, therefore the speed of train, रेलगाड़ी की चाल हो गई 60 km/h and that of bus, speed of बस की चाल, that was y is, the value of y is 80 km/h. ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अभी आपको। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, और यहाँ पे सेकंड केस पे हमेशा थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है कि शी टेक्स 10 minutes longer, 15 minutes longer, और तब आपको ध्यान रखना है यू हैव टू कंपेयर विद द केस 1 हाउ मच शी टुक इन केस 1. ओके ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बेस्ड ऑन वर्क एंड टाइम. ओके,
ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्क एंड टाइम। द क्वेश्चन इज 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ओके, एक काम है, ये बेस्ड है वर्क एंड टाइम पे। तो इसमें 2 मिलके एक महिला और पुरुष, 2 महिलाएं हैं फर्स्ट केस में, 2 महिलाएं और 5 पुरुष है, 2 मिलकर एक काम करते हैं और उनको कंप्लीट करने में 4 डेज लगता है। तो हमें पता करना है कि एक महिला अकेले कितने काम कर सकती है, ओके, और एक अकेला पुरुष, एक अकेला मैन कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करेगा, टाइम टेकन। ओके, तो हम मान लेते हैं हमें पता नहीं है, अननोन क्वांटिटीज है। टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन, एक्स डेज, वो एक्स डेज में पूरा करती है, और हम मान लेते हैं कि मैन है, जो पुरुष है, वो इस कार्य को करने के लिए, इस काम को करने के लिए वाई डेज लगाता है। ओके, अब वर्क और टाइम थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगी आपको। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है, ओके, एक वर्क है आपको, भले ही पेंटिंग हो, कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो, तो आपको वो काम करने के लिए 4 डेज लगते हैं। ओके, एक वर्क है, उसको लगता है आपको 4 डेज, ठीक है। मीन्स 4 डेज में कितना वर्क हुआ आपका, 1 वर्क हुआ। मीन्स वर्क डन इन 4 डेज। क्लियर, वर्क डन इन 4 डेज, कितना काम हुआ आपका, 4 दिन में एक काम कंप्लीट होता है। ओके, तो हर दिन आप कितना काम करोगे, एक दिन में आप कितना काम करोगे, तो वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन 4 डेज में 1 वर्क, तो 1 डे में इट विल बी 1/4 वर्क। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हमेशा जब भी हम वर्क करेंगे तो नंबर ऑफ डेज डिनोमिनेटर में होगा, हर में होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए महिला जो है एक्स डेज लेती है और एक मैन, अकेला पुरुष कितना ले रहा है, वाई डेज ले रहा है। क्लियर। तो वर्क डन, तो एक दिन में एक महिला कितना लेगी, 1/x वर्क करेगी, एक दिन में इतना ही वर्क करेगी। उसी तरह एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे। ओके, तो वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इक्वल्स टू 1/y। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस है 2 women and 5 men work together to finish their work in 4 days। ओके, तो 2 women और 5 men मिलके एक काम को कंप्लीट करते हैं 4 डेज में। क्लियर। तो 2 women's 1 day वर्क प्लस 5 men's 1 day वर्क इक्वल्स टू होना चाहिए 4 डेज है, तो कितना काम करेंगे वो लोग, 1/4 करेंगे। तो 1 woman कितना करती है, 1 woman कितना करती है, 1/x। क्लियर। प्लस ये कितना कर रही है, 5 men, एक पुरुष कितना कर रहा है, 1/5, 1/y। तो 5 कितने करेंगे, 5 × 1/5 इक्वल्स टू 1/4। तो आपका इक्वेशन हो गया 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब केस 2 में आइए। केस 2 देखें। केस 2, 3 women and 6 men together finish work in 3 days। क्लियर। तो 3 women's 1 day वर्क, 3 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, और 6 men एक डेज में जितना काम करती है, कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग 3 डेज में। मीन्स टोटल उसका वर्क कितना होगा, 1/3। मीन्स 1 डेज वर्क ऑफ वुमेन 1/x, 6 men मीन्स men's 1 day वर्क 1/y equals to 1/3। okay, or you obtained second equation, that is equation number 2. Now you have to solve equation 1 and 2. okay,
you have obtained equation 1 and 2. तो equation solving equation 1 and 2 we get, or we can write it, equation 1 and 2 can be written as 2a plus 5b equals to 1 by 4 and 3a plus 6b equals to 1 by 3, where a equals to 1 by x and b equals to 1 by y. Solving equation, this equation 3 and 4 equation solve करना आपको आता है. When you solve this one, you will get a equals to 1 by 18 and b equals to 1 by 36. And what is a? A is 1 by x. ठीक है. Then x will be 18 and y will be, you will get y equals to 36. That means what was x? हमने क्या माना था? x हमने माना था time taken by women alone. Okay, in x days means a woman can alone finish the work in 18 days. 18 दिन में महिला कंप्लीट कर लेंगी. और वही चीज़ y मीन्स मैन था, मैन जो है अकेले उसको 36 डेज में कंप्लीट कर लेगा. ओके, ये समझ गए होंगे. क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए और एक क्वेश्चन आपको घर पे करना है. समीर ट्रेवल्स 300 किलोमीटर by train and 200 km by taxi, taking 5 hours 30 minutes. But if he travels 260 km by train and 240 km by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and speed of the taxi. Question number 2. 8 men and 12 boys can finish a work in 5 days, while 6 men and 8 boys can finish in 7 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. हिंदी में समीर 300 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तथा 200 किलोमीटर की यात्रा टैक्सी से करता है और 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं, परंतु यदि वह 260 किलोमीटर की यात्रा ये रेलगाड़ी से और 240 किलोमीटर की यात्रा टैक्सी से करें तो उसे 6 मिनट और लगेंगे. रेलगाड़ी और टैक्सी की चाल ज्ञात कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2. 8 व्यक्ति और 12 लड़के एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि 6 व्यक्ति और 8 लड़के उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर लेते हैं. ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को पूरा करने में एक अकेले व्यक्ति और एक अकेले लड़के को कितना समय लगेगा. ओके स्टूडेंट, टुडे वी लर्न how to formulate the problem as a pair of linear equation and to solve it, that is based on speed, distance and time, and also we learn how to solve the problems related to work and time. इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. हम अगले क्लास में फिर से मिलेंगे.